Hello, good morning to all my dear students. क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 10, that is circle. But when we talk about circle, certain concept you have studied in standard 9. So before I start the concept of standard 10, it is necessary to revise all those concepts which you have studied in standard 9. So definition से ही शुरुआत करते हैं. Circle is what? Circle, it means collection of all those points in a particular plane. Collection of all those points in a plane which are at fixed distance from the fixed point. Which are at fixed distance from the fixed point. Fixed point is called as a center of circle, and fixed distance is all we know very well, it is called as a radius of the circle. Definition बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं कि circle it means what? It is nothing but collection of all those points in a particular plane from the fixed point to the fixed distance, or you can say which are at fixed distance from the fixed point. That is called as a circle. Fixed point we all know very well, it is called as a center, and fixed distance, that is called as a radius. Now in 9th standard you have studied about partition of circle. Partition of circle means if you talk about a circle in any particular plane, definitely there are three different portions. Some of the portions which are outside the circle, that part is called as a exterior of the circle. Circle itself, and inside the circle, that is what we can call is a interior of the circle. That you have studied. Fine. Next is very important definition, that is chord. Now chord, it means what? If you take in a circle any 2 point, कोई भी सर्कल पे 2 पॉइंट ले लो. in any circle, if you take 2 points and if you join the line segment, that is called as a chord. Fine. So chord means what? It is nothing but a line segment whose both the endpoints are on a circle. Both the endpoints are on a circle. chord ये लाइन सेगमेंट है कि जिसके दोनों ही पॉइंट सर्कल पे है. फाइंड नॉट आउटसाइड द सर्कल, नॉट इनसाइड द सर्कल. सो दैट you have studied. Fine. Next is what? Diameter. Diameter is nothing but, again when you talk about diameter, तो देख लो डायामीटर के दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे ही है. और एंड दिस इज अ सेंटर, फॉर एन एग्जांपल P, and this point is A, this point is B. So diameter is basically line segment. Line segment whose both endpoints are on a circle. So that already we know very well, it is a chord. तो अब diameter को अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं कि diameter means what? It is a chord. बट ये वो chord है जो सेंटर में से पास होता है. Diameter is nothing but a chord which is passing through the center. Chord which is passing through the center. No problem. सेंटर में से अगर कोई भी chord पास हो रहा है तो that is definitely called as a diameter. You can always say diameter is considered as a largest chord. That is also called as a diameter. Fine. So diameter is nothing but chord which passes through the center of the circle. Circle के सेंटर में से अगर कोई भी लाइन सेगमेंट पास होता है जिसके दोनों ही एंड पॉइंट सर्कल पे है, तो ऑफ कोर्स दैट इज कॉल्ड एज अ chord, बट इट इज अ लार्जेस्ट chord. एक और चीज स्टैंडर्ड 9th में लर्न की थी, आर्क ऑफ अ सर्कल. कोई भी सर्कल में बनाओ, आर्क क्या है? For an example, there are 2 points lie on a circle. A and B, 2 पॉइंट सर्कल पे है.
तो आर्क इट मीन्स नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का एक हिस्सा. नाउ when we systematically define, you can say a piece of a circle between 2 points on a circle is called as a arc of a circle. मानो मैंने यहाँ एक P point रखा है, here I have mentioned Q point, तो this is also called as a arc. Now arc are of two type. ध्यान से सुनना है, स्टैंडर्ड 9th की एग्जाम शायद आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने नहीं दी है, तो रिवीजन करना अति आवश्यक है. 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं अभी बोलने जा रहा हूं. नंबर 1 इज आर्क, नंबर 2 इज सेगमेंट ऑफ सर्कल एंड नंबर 3 इज सेक्टर ऑफ सर्कल. और ये तीनों ही वर्ड के साथ टाइप्स जुड़े हुए हैं. जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट आर्क, तो डेफिनेटली आर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस. दिस इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट आर्क, आर्क ए बी. बट आर्क आर ऑफ टू टाइप, मेजर एंड माइनर. तो इफ आई टॉक अबाउट दिस आर्क जो मैंने मेंशन किया है, दिस इज अ माइनर आर्क. इफ आई टॉक अबाउट दिस आर्क, तो दिस इज अ मेजर आर्क. ये जो आर्क है दैट इज अ मेजर आर्क. फाइन, minor arc and major arc, but ultimately arc are part of a circle, piece of a circle. No worries. Fine. Next is a very important part, that is segment of circle. Segment of circle. Segment की जब भी मैं बात करूं तो definitely in circle we have to mention chord first. If I talk about a segment, for an example, this is a circle. If I talk about chord AB and P is a center, for an example. So now you can see that whenever I talk about segment, ध्यान से सुनना है, segment means what, कि एक सर्कल का ही ऐसा हिस्सा जिसमें कॉर्ड है, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ द आर्क. यानी कि फॉर एन एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्ट, तो दिस इज कॉल्ड एज अ सेगमेंट. कॉर्ड है, कॉर्ड इज देयर एंड आर्क इज इन्वॉल्व्ड. कॉर्ड एंड आर्क. इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्ट, तो हियर आर्क इज इन्वॉल्व एंड डेफिनेटली आर्क के अंदर जो हिस्सा है सर्कल का, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व. फाइन. सो बेसिकली वी कैन से सेगमेंट ऑफ सर्कल मीन्स अ रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड एज अ सेगमेंट. मुझे अगर माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट डिस्टिंग्विश करना है तो मैं यहाँ एक और पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, दैट इज फॉर एन एग्जांपल आर. यहाँ पे मैं और एक पॉइंट मेंशन करता हूँ, दैट इज अ टी. तो ये आर्क ए टी पी, ए टी बी जो आर्क है एंड ए बी इज अ कॉर्ड, तो उससे जो हिस्सा और एरिया बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ मेजर सेगमेंट. एंड इफ आई टॉक अबाउट माइनर सेगमेंट, इट मीन्स व्हाट, आर्क ए आर बी एंड कॉर्ड ए बी. सेगमेंट में दो चीज याद रखनी है, नंबर 1 इज कॉर्ड, नंबर 2 इज आर्क. आर्क एंड कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, और यू कैन से कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क से हिस्सा बनता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ सेगमेंट, one part of circle. Fine. So this is all about segment. Fine. I will definitely share this PDF जिसमें मैंने सारी डेफिनेशंस लिखी है. एक डेफिनेशन रह गई जो आप 7th स्टैंडर्ड से लर्न करते आए हो, circumferences of the circle. तो circumferences, it is nothing but length of a circle. It is nothing but length of circle. Or we all know very well the length of circle is called as a 2 pi r. How can we measure the length? 2 pi r, circumferences of the circle. Okay, so here it is there. Next is very important part, that is sector. Whenever I talk about a sector,
ध्यान से सुनना है, सेक्टर की बात में कॉर्ड नहीं आता है। रिमेंबर वन थिंग, सेक्टर की डेफिनेशन में कॉर्ड वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है। लुक एट दैट, फॉर एन एग्जांपल, दिस इज अ सर्कल, this is a center, for an example O, and these are two different radius for an example OP and OQ, ये दोनों रेडियस है, नो प्रॉब्लम। ओके, अब सेक्टर मीन्स व्हाट, अ रीजन बिटवीन द आर्क, तो सेगमेंट में भी आर्क तो था ही, राइट, सेक्टर में भी आर्क तो है ही, लेकिन यहाँ कॉर्ड नहीं है। यहाँ क्या है, टू डिफरेंट रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, आई मीन टू से सर्कल की सारी रेडियस सेम ही होती है, तो इट इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडी joining the center to the end points, तो ये जो हिस्सा है that is what we can call is a sector। छोटा हिस्सा है तो उसको हम बोलेंगे minor sector and this one is called as a major segment। यहाँ कॉर्ड नहीं है, तो आर्क में माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट में कॉर्ड एंड आर्क, सेक्टर में आर्क एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू रेडी, बात खत्म। ये सब 9th स्टैंडर्ड में लर्न करके ही आए हो, तो डेफिनेटली आई विल नॉट टेक मच टाइम, बट ये जरूरी है। ओके फाइन, अब ये इतने बेसिक्स लर्न करने के बाद अब चालू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल, जो 10th स्टैंडर्ड में जो नया है जो लर्न करना है वो। सर्कल की डेफिनेशन में हमने प्लेन यूज किया था, वर्ड प्लेन, और ये प्लेन के अंदर ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। नाउ सर्कल आपको अब पता है, अब प्लेन के अंदर, कोई भी प्लेन के अंदर सर्कल तो है ही भाई, लेकिन लाइन भी आपको गैस करनी है कि कोई भी लाइन है तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन एनी प्लेन इफ सर्कल एंड वन लाइन इज देयर, तो हमें वो पॉसिबिलिटी पहले डिस्कस करनी है। तो मान लो कि सर्कल के 3 पार्टीशंस मैंने सबसे पहले आपको बताए, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड सर्कल इटसेल्फ। तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी है लाइन की कि जो सर्कल को बिल्कुल टच ही नहीं करेगी, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। मान लो ये लाइन मैंने ले ली फॉर एन एग्जांपल एल। दूसरी ये पॉसिबिलिटी है कि कोई भी लाइन प्लेन के अंदर सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी 2 डिफरेंट पॉइंट पे, the line will intersect the circle at 2 different point, this is second possibility। third possibility is ये सर्कल, हाँ, नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी इज कोई भी लाइन सर्कल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे टच करती है, it intersect the circle at only and only one particular point, and that is the possibility। इस पूरी चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लेन के अंदर सर्कल है एंड वन लाइन इज देयर, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो देयर आर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो मैंने पीडीएफ में मेंशन की है। नंबर 1, देयर इज अ नो एनी कॉमन पॉइंट, लाइन भी अलग है, सर्कल भी अलग है। नंबर 2, it intersect the circle at 2 different point, and that is of course called as a secant। नंबर 3 is most important part कि कोई भी प्लेन के अंदर सर्कल को अगर वो लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो that is called as a tangent। this is most important word of standard 10 जो नया है आपको लर्न करना है, that is called as a tangent of the circle। और इस पूरे चैप्टर में हम इसके बेसिस पे कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। सो टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज नथिंग बट अ लाइन इन अ प्लेन ऑफ द सर्कल जिसमें
वो लाइन सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट। इस टेंजेंट के बारे में हम कई सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन, द पॉइंट, फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे ये जो P पॉइंट है, इट इज नथिंग बट पॉइंट एट विच टेंजेंट, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फॉर एन एग्जाम्पल ए पॉइंट, और ये टेंजेंट है, लाइन है, वो है PQ। तो क्या PDF के हिसाब से हम जाए, द पॉइंट ए एट विच at which the tangent PQ touches at the circle, that is called as a point of contact. Next is very important, normal, NORMAL, normal. Normal is nothing but a radius, this one, a radius through a point of a contact A is usually called as a normal to the circle at point A. So tangent, now you will be very clear. Next is very important part, कोई भी सर्कल के बारे में अगर मैं बात करता हूं, a circle can have infinite many tangents. सर्कल के हर वो पॉइंट पे आप टेंजेंट बना सकते हो, हर वो पॉइंट पे आप टेंजेंट बना सकते हो, राइट? एंड एज वी ऑल नो वेरी वेल, सर्कल इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स फ्रॉम द फिक्स्ड डिस्टेंस टू द फिक्स्ड पॉइंट। तो इतने सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर, हर पॉइंट पे आप एक टेंजेंट बना ही सकते हो। तो सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रू और फॉल्स में पूछते हैं। नेक्स्ट इज थ्रू अ पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल वी कैन नॉट हैव एनी टेंजेंट। कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है तो डेफिनेटली, कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है तो डेफिनेटली वी कैन नॉट हैव एनी टेंजेंट, एज सिंपल एज, राइट? नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू अ पॉइंट एक्सटीरियर टू द सर्कल। मान लो कि यहां कोई पॉइंट है P फॉर एन एग्जाम्पल, तो ये सर्कल के बाहर जो पॉइंट है उसमें से, ध्यान से सुनना है, आप मैक्सिमम कितने टेंजेंट बना सकते हो ये पॉइंट में से, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैक्सिमम आप 2 टेंजेंट बना सकते हो। फाइंड अ पॉइंट लाइंग इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, वी विल हैव एक्जैक्टली 2 टेंजेंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट है अनडाउटेडली, सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट है तो उसमें से हम टेंजेंट नहीं बना सकते, बट सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट है उसमें से मैक्सिमम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स वी कैन हैव, exactly 2 tangents. This is most important part. Fine. So through a point lying in the exterior of a circle, we will have exactly 2 tangent to the circle. Fine, no problem. Now आगे बढ़ते हैं थियरम 10.1 से। थियरम 10.1 is very important, जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज भी करने वाले हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, डायग्राम बनाओ पहले। The tangent at any point of a circle, the tangent at any point of a circle is exactly perpendicular to the radius. Most important statement of, or you can say theorem of this chapter, most important theorem, a tangent at any point of a circle is always perpendicular to that particular radius. मैं यहां एक टेंजेंट बनाऊं तो यहां जो रेडियस हुई उससे वो बिल्कुल ही कैसा होगा, परपेंडिकुलर। मैं फॉर एन एग्जांपल यहां एक टेंजेंट बनाऊं, नो प्रॉब्लम, तो यहां जो कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस आएगी उससे बिल्कुल वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर। और ये थियरम हम बहुत यूज करने वाले हैं पूरे चैप्टर में। तो थियरम 10.1 is what? A tangent at any point of a circle is always perpendicular to the
radius through that particular point of a circle. तो इतने बेसिक्स लर्न करने के बाद जो वो स्टैंडर्ड 10 में नया है, जो मैंने आपको बताया कि ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर 3 इंपॉर्टेंट वर्ड. नंबर 1 is tangent, that is most important word. Number 2 is definitely you can say normal, जो corresponding radius मैंने आपको बताई थी वो. And number 3 is most important, that is a secant. तो secant की डेफिनेशन पहले देखें. secant मीन्स व्हाट, जैसे मैंने बताया कि कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल, फॉर एन एग्जाम्पल, तो अगर कोई भी लाइन सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ सिकांट. अगर वो कोई भी लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो डेफिनेटली वी कैन से इट इज अ टेंजेंट. बट अगर वो लाइन सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ सिकांट. उसको हम क्या बोलेंगे? सिकांट. ओके. और एक छोटा सा स्टेटमेंट याद रखना है क्योंकि एक्सरसाइज में वो जरूरी है कि अगर मैं कोई भी सर्कल बनाऊं और ये मैंने बनाया है सिकांट, क्योंकि सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, तो देयर आर एक्जैक्टली 2 टेंजेंट. ध्यान से सुनना है. देयर आर एक्जैक्टली 2 टेंजेंट which is parallel to the given secant. ये सर्कल के 2 ऐसे टेंजेंट आपको मिलेंगे जो ये सिकांट से बिल्कुल ही पैरेलल है. 2 से ज्यादा आप नहीं बना सकते. सो सिकांट इट मीन्स अ सेगमेंट व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट. तो सिकांट से वही टेंजेंट है. फाइन. ओके. तो अब सेकेंड पार्ट में हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं.